چلیں تو ساتھیوں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو جو ہے وہ ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ہم بات کریں گے کہ فش آئل کے بارے میں۔ فش آئل کا جو تعلق ہے وہ دماغ اور اعصاب اور پورے جسم سے ہی ہے، کیونکہ فش آئل میں جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کیا؟ وہ ہوتا ہے اومیگا 3۔ اومیگا 3 بہت سنا ہوگا آپ نے، بہت سنا ہوگا اومیگا 3۔ اومیگا 3 کیا کیا کر سکتا ہے؟ اومیگا 3 کے کیا فائدے ہیں؟ فش آئل کے اپنے کیا فائدے ہیں؟ فش آئل ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ فش آئل ہم کتنا اماؤنٹ لے سکتے ہیں؟ فش آئل کا مطلب کہ کیا فش کا ہی آئل ہوتا ہے یا یہ کہیں اور سے آتا ہے؟ اومیگا 3 کے کیا فائدے ہیں؟ اومیگا 3 جسم پہ کیا اثرات ڈالتا ہے؟ اگر ہم کچھ عرصے کے لیے فش آئل کو استعمال کریں یا اومیگا 3 کو استعمال کریں تو اس کے کیا کیا فوائد ہو سکتے ہیں، تو اس پہ آج ہم بات کریں گے۔ اس سے پہلے میں ایک چھوٹا سا ڈسکلیمر دے دوں اپنے ساتھیوں کو کہ جناب یہ جو بھی ہم ویڈیو بناتے ہیں، اس ویڈیو کا صرف حاصل ہمارے کو یہ ہے کہ ہم صرف لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، لوگوں کو اس کا انفارمیشن دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم کس بارے میں گفتگو شنید کر رہے ہیں۔ آپ سے جو ہم یہ گفتگو کرتے ہیں یہ صرف اور صرف اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ آپ اس سے آگاہ ہو جائیں اور یہ آگاہی دوسری جگہ تک پہنچائیں۔ خاص طور پر ہماری ویڈیو کو آپ شیئر کیجئے، شیئر ضرور کیجئے، پلیز سبسکرائب بھی کیجئے۔ یہی ایک طریقہ ہے کہ اس طرح سے ہم آگاہی کا یہ سفر مکمل کر سکیں گے۔ میں ہوں ڈاکٹر محمد قذافی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر محمد قذافی ویوز۔ تو ہم شروع کرتے ہیں آج کا اپنا ٹاپک فش آئل کے حوالے سے۔ دیکھیں فش آئل جو ہے، سب سے پہلے میں یہ بتاتا ہوں کہ اس کا اثر کیا ہوتا ہے باڈی پر۔ دیکھیں اس کا باڈی پہ سب سے بڑا یہ اثر ہے کہ یہ اینٹی انفلامیٹری ہے۔ اینٹی انفلامیٹری کا مقصد یہ ہوتی ہے کہ جہاں پر بھی سوزش، انفلامیشن، سوجن ہونے کا اندیشہ، خطرہ موجود ہوتا ہے، اس کو یہ کم سے کم کر دیتی ہے۔ دوسرا جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے، جو ہماری خون کی نالیاں ہوں، چاہے بڑی ہوں چھوٹی ہوں، آپ کو پتہ ہے جن کا کولیسٹرول کا لیول زیادہ رہتا ہے ان کے ساتھ یہ مسئلہ رہتا ہے کہ ان کی خون کی نالیوں کے بندش ہونے کا مطلب یہ کہ خطرہ بڑھ جاتا ہے، اور جب خون کی نالیوں کا بندش ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے تو وہ ایریا جو کہ ان خون کی نالیوں کی وجہ سے سپلائی ہوتا ہے وہ ایریا ڈیمیج ہو سکتا ہے۔ وہ ایریا دماغ کا بھی ہو سکتا ہے، وہ ایریا دل کا بھی ہو سکتا ہے، وہ ایریا گردوں کا بھی ہو سکتا ہے، وہ ایریا لیور کا بھی ہو سکتا ہے، وہ ایریا آپ کی آنکھوں کا بھی ہو سکتا ہے۔ آنکھوں کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے کہ کوئی بھی خون کی نالیوں کو جب نقصان پہنچتا ہے تو آنکھوں کو نقصان پہنچنے کا خطرہ شدید ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر آنکھوں کو نقصان پہنچ جائے تو انسان کو کتنا زیادہ شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ جو اومیگا 3 ہے یا فش آئل ہے، اس کا سب سے بڑا فائدہ آپ کی سوزش کم کرتا ہے۔ جب سوزش کم ہوتی ہے آپ کی خون کی نالیوں کی صحت صحیح رہتی ہے۔ جب آپ کی خون کی نالیوں کی صحت صحیح رہتی ہے تو آپ کی خون کی نالیوں کے بندش کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ دیکھیں خون کی نالیاں بھی دو طرح کی بند ہو جاتی ہیں، ایک ہوتی ہیں بڑی خون کی نالیاں، ایک ہوتی ہیں چھوٹی خون کی نالیاں۔ اگر بڑی خون کی نالیاں بند ہو جائیں تو پھر اس سے بڑا ایریا ڈیمیج ہوتا ہے، خاص طور پہ دل پر، دماغ پر اور پھیپھڑوں پر، دل پہ، دماغ پر، پھیپھڑوں پر، پاؤں پر، یعنی ہمارے پیروں پر اور ہمارے گردوں پر اور ہمارے جگر پر اور دوسرے جسم کے اعضاء پہ ان کا سخت اثر آتا ہے۔ لیکن اگر پتلی باریک مائکرو ویسکولر انجری ہو، مائکرو ویسکولر انسلٹ ہو تو اس سے ڈی جنریٹو چینجز آتی ہیں، سب سے زیادہ آنکھوں پر، گردوں پر، پھیپھڑوں پر، لنگز پر، دل پر، دماغ پر اور آنکھوں پر بہت اثر آتا ہے ان کا۔ تو ان دونوں صورتوں میں یہ بہت زیادہ اومیگا 3 کا بہت امپورٹنٹ رول ہے اور یہ بہت ہی افادیت دیتی ہے، خاص طور پر ہائپر کولیسٹریلیمیا میں، یعنی کہ کولیسٹرول لیول جن کا ہائی ہو ان میں، اور ان لوگوں میں بھی یہ فائدہ دیتی ہے جن لوگوں کا گلوکوز لیول کا
यानी डायबिटीज़ का मसला हो, ग्लूकोज डेफिनेटली उसमें बढ़ती रहती है, और आप एहतियात भी करते हैं तो भी जब ग्लूकोज बढ़ती है तो उसके असरात माइक्रोवेस्कुलर पे आते रहते हैं और उससे आँखों को नुकसान शदीद से शदीद तर होता रहता है। तो उससे बचने के लिए ओमेगा 3 का इस्तेमाल या फ़िश ऑयल का इस्तेमाल बेइंतहा ज़रूरी होता है। अच्छा जी, इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है ओमेगा 3, वो आपके जिस्म में जो कैल्शियम होती है, आप ऐसे ही कैल्शियम अगर खा लेते हैं तो वो कैल्शियम जो होती है वो गलत जगह पर भी डिपॉजिट हो सकती है, यानी गलत जगह पर भी जमा हो सकती है। अगर वो गलत जगह पर डिपॉजिट होगी या गलत जगह पर जमा होगी तो आपको उसका फ़ायदा होने के बजाय नुकसान होने का ख़तरा सबसे ज़्यादा होता है। तो ऐसी सूरत हाल में अगर आप फ़िश ऑयल के साथ कैल्शियम लेते हैं या ओमेगा 3 के साथ कैल्शियम लेते हैं तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपका कैल्शियम सही जगह पर डिपॉजिट होता है और वो 20 से 40% डिपॉजिशन को करेक्ट कर देता है आपके कैल्शियम की। और तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कैल्शियम को करेक्ट करने का कि अगर किसी को कैल्शियम बढ़ी हुई रहती है और या उसका सही जगह पे उसका वो कैल्शियम जाके आप खाने के बाद भी अगर वो सही जगह नहीं जाती और कैल्शियम आपके जिस्म में, मतलब ये कि ब्लड में तो है लेकिन आपके सही जगह नहीं है, तो आपको रात को सोएंगे भी तो आपको एक थकावट सी महसूस होगी और वो थकावट इतनी शदीद होगी आपको कि उस थकावट के बाद भी आपको नींद भी नहीं आएगी और आप एक अजीब से कर्ब के माहौल में गुजरते हैं। अगर कैल्शियम आप खाते हैं और वो सही जगह चली जाती है तो उसका सबसे बड़े से बड़ा फ़ायदा आपको ये होता है कि आपको जो कैल्शियम खाने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि और कैल्शियम सही जगह डिपॉजिशन होने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपके जिस्म में जो थकावट होती है, क्रैम्प्स होते हैं, पाँव में क्रैम्प, हाथ में क्रैम्प, इनका सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदा होता है। और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनका फ़ायदा होता है, वो अगली वीडियोज़ में हम उनका डिस्कस करते रहेंगे आगे। लेकिन अभी आपको जो हम इफ़ादियत बताना चाह रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा बताना चाह रहे हैं वो ओमेगा 3 और फ़िश ऑयल के बारे में। इसके अलावा जो फ़िश ऑयल का फ़ायदा ये है कि वो एक तरह से आपके जिस्म की टॉक्सिसिटी को भी कम करती है और एजिंग प्रोसेस को भी रोकती है। फ़िश ऑयल में विटामिन डी के साथ साथ विटामिन ए भी होता है। विटामिन डी के इफ़ादियत तो बहुत ज़्यादा है, आपको पता ही है कि विटामिन डी जो है वो पूरे बॉडी में उसका कितना बड़ा रोल है कैल्शियम को कंट्रोल करने में और आपकी हड्डियों को मजबूत करने में और ब्लड वेसल्स की सफाई करने में। लेकिन साथ ही साथ विटामिन ए का सबसे बड़ा फ़ायदा आपकी आँखों को है। आपकी आँखों की डीजेनरेशन जो कि रोज़ के हिसाब से इंसान की बॉडी डीजेनरेट होती है, उसकी स्पीड को काफ़ी हद तक रोक देता है। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको फ़िश ऑयल का ये है। फ़िश ऑयल के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन ये आपको जितने मैंने फ़ायदे गिनवाए हैं ये आपके पेट की तेज़ाबियत में भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और सबसे बड़ी बात है कि फ़िश ऑयल का मर्दाना ताकत पर और औरतों की निस्वानी ताकत पर भी बहुत ज़्यादा असर होता है। उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल बेहतर हो जाती है, मर्दों का जो है स्पर्म का काउंट बेहतर हो जाता है और भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसके अलावा जो मैं आप लोगों के आगे जिक्र करूं कि ये कैसे हासिल किया जा सकता है, तो फ़िश को अगर आप खाल समेत खाएं तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप समझते हैं कि फ़िश के अंदर बनता है, असल में फ़िश जो होती है वो समंदर में एल्गी खाती है। ख़ास तौर पे बहुत सारे लोग जो है फ़िश ऑयल को पसंद नहीं करते हैं या उनका अपना कोई मजहबी रुझान रहता है, तो एल्गी नेट के भी कैप्सूल्स आते हैं बाज़ार में। आप एल्गी नेट और एल्गी के भी कैप्सूल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत इंतहा फ़ायदा हासिल होगा। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको हासिल होता है, क्या कहते हैं, ये किस तरह खा सकते हैं, अंडों में भी थोड़ा बहुत ओमेगा 3 होता है, लेकिन फ़िश ऑयल के कैप्सूल्स जो होते हैं वो आप खाएं तो बेहतर है। अच्छा, दूसरी बात ये होती है कि बहुत सारे हम सिर्फ फ़िश ऑयल के कैप्सूल्स खा के या सिर्फ और सिर्फ एल्गी नेट के कैप्सूल खा के ही मसला हल कर सकते हैं, नहीं। ये जो जानवर जो होते हैं, ये जो हरी घास खाते हैं ख़ास तौर पे, उनके अंदर जब वो फैट बनती है तो वो फैट भी
जो क्या कहते हैं उसके अंदर भी ओमेगा 3 का इजाफा होता है। कुछ जानवर जो होते हैं, अब आप बोलेंगे सारे जानवर ही हरी घास खाते हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे जानवरों को दाना या दूसरा किस्म की ग़िज़ा दी जाती है, जैसे भैंस को दूध पैदा करने के लिए दूसरे किस्म की ग़िज़ा दी जाती है। लेकिन ऐसे जानवर जो कि हरी घास पर, ताज़ी हरी घास पर ज़िंदा रहते हैं, उन जानवरों का जो फैट होता है वो बहुत हेल्दी होता है। अगर आप उसे भी कंज्यूम करेंगे, उसे इस्तेमाल करेंगे, तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं ओमेगा 3 मिल जाएगा। ओमेगा 3 का मेजर मैं इख्तिताम इसी पे करूँगा। अगर होगा तो इस टॉपिक को हम और भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन ओमेगा 3 का सबसे बड़ा जो सोर्स है वो फ़िश है, उसकी खाल है, फ़िश ऑयल। अगर कोई होता है कि यहीं से आप तेल उठा लेते हैं फ़िश में तला हुआ, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो आप समझते हैं, असल में वो जो होता है एक तरह से उसमें टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, और वो असल में एक तरह से डैमेज और एक्स्ट्रा पका हुआ वो आपको तेज़ाबियत में और पेट में नुकसान दे सकता है। बहुत सारे लोग वो ऑयल जिसमें ऑयल अपना क्या कहते हैं फ़िश पकी हुई होती है, समझते हैं कि उसके अंदर ओमेगा 3 बहुत ज़्यादा है। वो उसमें ओमेगा 3 होता है, लेकिन वो फ़वाइद के साथ उसके नुकसानात भी होते हैं। लेकिन अगर जो क्लीन जो फ़िश ऑयल जो हम डेराइव करते हैं फ़िश से ही, तो वो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। एल्जीनेट से भी बहुत ज़्यादा, यानी एलजी के कैप्सूल्स आते हैं, उसके अंदर भी ये तमाम मटीरियल्स होते हैं। और जैसे मैंने आपको कहा कि ऐसे जानवर जो कि हरी घास खाते हैं और वो अगर आप उसे उनका फ़ैट कंज्यूम करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आज की वीडियो का हम इख्तिताम इसी बात पे करते हैं कि आप हमें सपोर्ट करते रहेंगे, और इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपसे अगली वीडियो पे अच्छे से और भी अच्छे टॉपिक पे बात करें। थैंक यू सो मच। फ़ी अमानिल्लाह।